So very good evening all the participants. Today let us do a case study which covers some of the provisions of the CIRP as well as individual insolvency. So I would request Umesh Arora ji to please read the case study. Umesh ji please. And I'll Good evening, interrupt wherever it is required. good evening, all of you. Study says Zameen Educom Limited, Delhi is engaged in providing coaching to CA students in NCR across various locations and availed loan facility of rupees 500 crores from a consortium of banks as per detail below. PNB 100 crores sanctioned from Delhi office, SBI 200 crores sanctioned from Mumbai office, Canara Bank rupees 200 crores sanctioned from Chennai office. Loan is secured against various properties and assets owned by Zameen Educom Limited. Zishan and Company, a partnership firm, in three partners, namely Zameel, Ishtiaq, and Shanbag, stood guarantor for the loans availed by Zameen Educom Limited. Zameel, Ishtiaq, and Shanbag are also directors in Zameen Educom Limited. COVID impacted the business badly, and Zameen Educom Limited went into rough weather. There was a default in respect of loan availed from PNB. Yes. So question number 1. I hope you have already seen the contents. About contents, there is no confusion. Yes, Contents it's में तो clear. कोई confusion नहीं है किसी को भी, Sir, it's clear. है ना? चलिए, now we can again come back to that previous page if it is required. Yes. Should I read the question? Yes, बिल्कुल. PNB is contemplating taking action against SurfaceE against Zameen Educom Limited, while SBI has agreed to the proposal, but Canara Bank is against any such action for the time being. Can PNB initiate proceedings under SurfaceE against Zameen Educom Limited? Options are yes, no, all of the three should agree, and last option is none of the above. So it says one bank is agreeable to the proposal, but Canara Bank is against. So let us see their respective shares. So Canara Bank share is 200 crores. Total is 500 crores. So out of 500 crores, creditors worth 300 crores are agreeable to the proposal for initiating action under SurfaceE. This is the meaning. है ना? तो in view of this, whether they can proceed under SurfaceE, this is first. Yes. Yes, sir. Because more than 60%. नहीं, more than 60 है या 60 है? अगर एग्जैक्ट 60 है, होगा तो 60 क्या होगा? 60% एंड अबव. 60 और मोर, है ना? 60 वर्ड ये लिखा है 60 और मोर. इन और केस सर ये में क्लास ऑफ क्रेडिटर्स बन जाएंगे. हाँ, नहीं, क्लास ऑफ क्रेडिटर नहीं. वो ये है कि अगर आपका ये होता है ना कंसोर्टियम, ये इसका आंसर आपको आईपीसी में नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा सरफेसी में. Okay. तो सरफेसी में क्या कहता है? इन केस देयर इज ए फंडिंग बाय ए कंसोर्टियम, देन 60% शुड एग्री. ओनली देन दे कैन टेक एक्शन अंडर सरफेसी. अगर मान लो दूसरा बैंक भी मना कर जाता, फिर एक बैंक एक्शन नहीं ले सकता. सरफेसी की बात हो रही है, आईबीसी की बात नहीं हो रही. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सरफेसी पर. दूसरा अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई क्या आईबीसी में एक्शन ले सकता है, मान लो एसबीआई भी एक्शन लेने को राजी नहीं है, कैनरा बैंक भी राजी नहीं है, तो क्या पीएनबी अलोन कैन टेक एक्शन अंडर आईबीसी? द आंसर इज यस. तो आईबीसी के लिए कोई 60% वाला क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सरफेसी में 60% वाला क्राइटेरिया. दिस इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Next question is, since no agreement could be reached, PNB decided to file an application under Section 7 of the IBC against Zameen Educom Limited. Can SBI and Canara Bank file a joint application along with PNB under Section 7? Options are no, yes. Joint application need to be filed in case of class of creditors only.
क्या आंसर रहेगा इसका? हितेश जी आप बताइए, आंसर क्या रहेगा? सर इसमें सी रहेगा। है सी? हाँ। सर मेरे हिसाब से बी रहेगा। इसका आंसर बी बी रहेगा। बी रहेगा, क्योंकि एक आईबीसी में 1 करोड़ का लिमिट है, और चूंकि यहाँ वो लिमिट क्रॉस कर रही, तो पीएनबी भी अगर फाइल करता है इज ओके, और अगर वो लोग भी दोनों एसबीआई कैनरा भी करते हैं दैट्स आल्सो ओके। हाँ, तो दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ, मेरा भी यही लॉजिक है कि सेक्शन ज्वाइंट 7 एप्लीकेशन में क्या अलग क्राइटेरिया है? एप्लीकेशन। ज्वाइंट एप्लीकेशन तो क्या होता है, वो 100 और 10%, वहां पर वो कॉन्सेप्ट है, वो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय पीएनबी वाज एडमिटेड एंड मिस्टर धैया was Mr. Dhaya, as suggested by PNB in his application, was appointed as IRP. What shall be the first action to be taken by Mr. Dhaya after taking charge as IRP? Options है making a public announcement, taking custody and control, appointment of valuers, constituting COC. तो सबसे पहले क्या एक्शन लेना है इसको? Taking a public announcement होना चाहिए सर मेरे हिसाब से। बी हाँ सर, है। बी टेकिंग कस्टडी एंड कंट्रोल। पब्लिक अनाउंसमेंट। देखिए, एक बार सेक्शन 17 पढ़ लीजिए, बुक है आपके पास? सेक्शन 17 पढ़िए जरा। सेक्शन 17 क्या बोलता है? किसी के पास बुक है? सर एक मिनट देखना है सर। Management of affairs of control of corporate debtors by interim resolution professional. हाँ। इसको पूरा पढ़ना है जी। नहीं नहीं, यहाँ देखिए, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट का रेफरेंस आता है? इस सेक्शन 17 में में कोई इस रेफरेंस सेक्शन आ में रहा है क्या नहीं पब्लिक सर, मेरे अनाउंसमेंट के को तो बारे में? दिखाई कुछ नहीं पड़ बोलता रहा। है? हाँ जी। नो सर। वैसे देखो, पहला काम पब्लिक अनाउंसमेंट ही करना है, क्यों कस्टडी एंड कंट्रोल में देखिए क्या इशू होता है। कस्टडी एंड कंट्रोल में सबसे पहली बात तो ये है कि फिजिकल कस्टडी होनी चाहिए उसके पास। कई बार एसेट्स ही नहीं मिलते, तो कस्टडी एंड कंट्रोल वो नहीं ले पाएगा। दूसरी बात ये कि मैनेजमेंट ही गायब है। पब्लिक अनाउंसमेंट तो कर ही सकता है ना वो, चाहे कुछ भी हो ना हो कंपनी के पास। पब्लिक और अनाउंसमेंट कर देगा, बस IRP शुरू हो गई इस कंपनी की। और मैक्सिमम करनी है इमीडिएटली, और इमीडिएटली का मतलब विद इन 3 डेज है, रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। वैसे भी सेक्शन 15 भी कह रहा है। हाँ। तो सबसे पहले, अच्छा एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड। सपोज प्रमोटर्स आर नॉट अवेलेबल, कंपनी को ताला लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर उस केस में कस्टडी एंड कंट्रोल कैसे लेगा वो? ऐसा भी हो सकता है ना कि कंपनी में ताला लगा हुआ हो। अगर कंपनी में ताला लगा हुआ है और आप IRP अपॉइंट हो गए, तो आप बताओ, आप कस्टडी एंड कंट्रोल कैसे लोगे? सर अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ए को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये क्या करेगी उसमें? सर उसमें मतलब ऑफिस है ही नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं, या कोई भी अवेलेबल ही नहीं है? रजिस्टर्ड ऑफिस है, पर वहां पर वो डायरेक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो सर दो विटनेसेस को रख करके हम हाँ, अपना सारी रिकॉर्डिंग करके बिल्कुल उस बिल्कुल उस बिल्कुल। तरह से कर सकते हैं। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका, ये मैं बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये आपको मिलेगा यहाँ, रेगुलेशन 3A।
ठीक है। रेगुलेशन 3A, असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन बाय द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटार। ये रेगुलेशन 3A में अमेंडमेंट हुआ। कब अमेंडमेंट हुआ? 3 फरवरी 2025 को। और उसमें 2-3 सिचुएशन बताई कि भाई कैसे कस्टडियन कंट्रोल लेना है। उनको लिस्ट रिक्विजिशन बना करके देनी कि भाई देखो भाई ये बुक्स के हिसाब से आपके ये एसेट्स हैं, अब आप इनकी कस्टडियन कंट्रोल हमें दो। ठीक है। क्योंकि ये अमेंडमेंट क्यों आई? क्योंकि लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंच जाते थे कि जी कस्टडियन कंट्रोल नहीं दे रहे। अब वो कहते हैं भाई तुमने क्या एफर्ट किया उसके लिए? और अगर कोई नहीं भी है तो 2 बंदे आप विटनेस बना करके और आप कस्टडियन कंट्रोल ले लोगे। ये कहाँ लिखी गई ये बात? ये बात लिखी गई है आपकी रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर। 3A बनाया है एक नया रेगुलेशन। ठीक है जी। क्या लिखता है? द IRP और RP एज द केस में भी shall requisition from the personnel of the corporate debtor, its promoter or any other person associated with the management of the CD, as the case may be, information relating to assets, finances and operations of the corporate debtor referred to in clause A of section 18, and such information required under regulation 36 which were required to be maintained by the CD but has not been handed over। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रेगुलेशन 3A। हैंडिंग ओवर द पोजीशन 4E। अगर आप रेगुलेशन 4E पढ़ें तो क्या कहता है? जैसे कई केसेस में क्या होता था, जैसे होम बायर्स है। ठीक है। अब होम बायर के केस में मान लीजिए उसने पूरी पेमेंट कर रखी है, सिर्फ उसका पोजेशन देना ही बाकी है। कई बार ऐसा भी होता था। और कंपनी चली गई CIRP में। तो अब IRP क्या कहेगा उसको कि खाली करो? क्योंकि बुक्स में तो अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है वो, क्योंकि रजिस्ट्री हुई नहीं। जब रजिस्ट्री नहीं हुई तो बुक्स में तो कंपनी की बुक्स में दिखा रही है वो प्रॉपर्टी, जबकि उसने पूरी पेमेंट कर चुका है वो बंदा। तो क्या होगा उस सिचुएशन में, ये बताइए। तो IRPS को ट्रांसफर इसका कर इसका सकते आंसर आपको रेगुलेशन 4E में मिल जाएगा। तो रेगुलेशन 4E एक बार पढ़ लीजिए, CIRP रेगुलेशंस को एक बार पढ़िए। After obtaining the approval of the committee with not less than 66% of total votes, the RP shall hand over the possession of the plot, apartment, or building or any instruments agreed to be transferred under the real estate project and facilitate registration where the allottee has requested for the same and has performed his part under the agreement. हाँ भाई, उसने अपना पार्ट पूरा कर दिया। उसका पार्ट क्या है? पैसे देना। उसने टाइमली पेमेंट कर दिया, है ना। रजिस्ट्री अभी हुई नहीं, तो वो कहते हैं IRP को बोला भाई तुम रजिस्ट्री कराओ, COC से अप्रूवल ले लो, नॉट लेस देन 66। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर एक और सिनेरियो हो हाँ कि अगर डायरेक्टर्स ने IRP को बंदूक दिखा दी और उसको हैंडओवर नहीं दिया तो नहीं, क्या फिर करें? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ही जाएगा, और तो कोई रास्ता नहीं है भाई, वो तो क्योंकि उसमें ऐसा भी कुछ कर होता नहीं है, सकते। जहां करोड़ों का मामला है वहां ऐसा भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता? होता ही है। ये तो होता ही, ये तो हमारे दोस्त के साथ हुआ था एक बारी। उसको कह दिया भाई देखो तुम आ तो गए हो, जा नहीं पाओगे वापस यहाँ से, क्योंकि उसने वो टेबल पे ही रिवॉल्वर रख दी थी। और क्या होता है, ये लोग बदमाश टाइप लोग होते हैं, और ये ऐसी ऐसी जगह प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ होटल वाले भी इनके ही होते हैं। वो बंदा कहीं सोचे मैं होटल में रुक जाऊंगा, होटल वोटल भी सब इनके, प्रॉपर्टीज सारी इनकी होती है वहां पर। वहां के बंदे ये रसूखदार होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। मैं कंटिन्यू करूं, पूजा जी करेंगे? हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। आप पढ़ लीजिए। Parents of various students had deposited fees for the tenure of 2 years amounting to rupees 50,000. There are 1,500 such students. Do such students or their parents constitute a class of creditors? Options हैं yes or no. भाई ये क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, स्टूडेंट ने फीस जमा करा रखी है, तो पैसे तो दे ही रखे हैं ना। हम्म।
तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, या अगर मान लो माइनर हैं, तो उनके पेरेंट्स क्या ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ जी, ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है? वो ही कहता है, क्योंकि अगर आपको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए, ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज था। भाई जमीन एजुकॉम क्या कर रही थी? सर्विसेज दे रही थी ना, एजुकेशनल सर्विसेज। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि अगर कोई एडवांस पेमेंट हुई है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये ऑपरेशनल डेट है। ठीक है जी, तो ये इसमें जजमेंट है। तो ये जो है, एक मैं देखता हूं अगर आपको दिखा सकूं तो। ये देखिए, मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, आ रही नजर? हाँ जी सर। तो क्या कहता है? डेट अराइजिंग आउट ऑफ एडवांस पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एन ऑपरेशनल डेट। सो एस सी अलाउज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स टू इनिशिएट सीआईआर। ये इसको ऑपरेशनल डेट माना है। ठीक है जी। तो सर होम बायर्स और होम बायर्स के केस में तो ऐसा नहीं होता फिर। होम बायर ने तो देखो, ऐसा है ना भाई, होम बायर कोई सर्विसेज थोड़ी दे रहे हैं, या वो उनको कोई सर्विस थोड़ी दे रहा है। वो तो कह रहा है कि एक तरह से इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग है। होम बायर्स का तो अलग से डिस्कस किया गया है। होम बायर्स को कहा गया है कि जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, ये उसको फंड करते हैं, क्योंकि बिल्डर अपने पैसे तो लगाता नहीं, वो इनसे पैसे लेकर लगाता है, कंस्ट्रक्शन करता है। बहुत सारी सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम्स होती हैं कि भाई इतने पैसे दे दो, लेंटर पर इतने पैसे दे दो, इस फर्स्ट फ्लोर पर इतने पैसे दे दो, होता है ना स्कीम। वो हम्म। लिंक्ड रहती हैं कंस्ट्रक्शन से। वो ही कहता है एक किस्म से फाइनेंसिंग हो रही है, तो इसलिए उनको होम बायर्स में माना। अब इनसे कोई लेके फाइनेंसिंग थोड़ी कर रहा है वो अपने बिजनेस को। हाँ ये जी ठीक है सर। है ना। तो ये भी, ये वाला भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आगे चलते हैं हम। तो ये हो ही गया है ना। तो ये क्लास ऑफ क्रेडिटर नहीं है, क्योंकि क्लास ऑफ क्रेडिटर किसमें हो सकता है? सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर में, और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है नहीं, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है। अब नेक्स्ट देखें। यस। Some of the students studying are less than 18 years of age. Does it affect their right to claim money from the institute? Options are yes, being a void ab initio contract. Second option is no. भाई कुछ स्टूडेंट माइनर है, तो क्या वो इंस्टीट्यूट से मनी क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो मेरे हिसाब से यस होना चाहिए। द आंसर इज नो। नो। हाँ, आंसर नो इसलिए है क्योंकि क्या है कि बेनिफिट्स तो उसको मिल सकते हैं ना। माइनर को बेनिफिट वाली चीजें नहीं आप डिनाई कर सकते। भाई इसमें तो उसको पैसे मिलने हैं ना। अगर उसने देने होते तो बात अलग थी, फिर ये उल्टा हो जाता, फिर क्या देते ये वॉइड एब इनिशियो। लेकिन अब उसने लेने हैं पैसे, इसलिए उसको मिल जाए। तो इसमें पेरेंट्स नहीं कर सकते कुछ? हाँ जी। पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि बच्चे तो उनके माइनर है। तो पेरेंट्स को ही पैसे मिलेंगे, बात तो वही है, पैसे तो उनको दैट विल मिल बी, जाएंगे ना। तो दे विल क्लेम द मनी ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। The assets owned by Zameen Educom Limited are as under.
Immobile properties in NCR, rupees 200 crore. Technical equipment, rupees 45 crore. Patents and trademarks, rupees 55 crores. The assets are spread over 10 locations and valuers identified are not willing to visit the locations due to pandemic. PNB had got the valuation done few months ago. Can Mr. Dhaya take into account the valuation done by PNB? Options are yes, no. Valuation done within 3 months can be considered. अब क्वेश्चन ये है भाई, क्या होता है कई बार लोन देने के टाइम पे फाइनेंशियल क्रेडिटर भी वैल्यूएशन करवाते हैं। अब वैल्यूअर कोई जाने को राजी नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि आप पुरानी वाली वैल्यूएशन को मान लें, क्या करें? क्वेश्चन यहाँ पर ही है, या उसको वैल्यूएशन करवानी ही पड़ेगी। सर मेरे चल हिसाब से नो। सकते हैं हाँ जी, सर, वैलिड रहेगी शायद, क्योंकि जब हम CIRP से लिक्विडेशन में भी जाते हैं अगर, तो उसमें भी अगर बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो लिक्विडेटर पुराने वाली ही चला लेता है कई बारी, वो अगर अलग बहुत ज्यादा कहानी है। गैप नहीं। यहाँ भी तो CIRP है ना, CIRP में भी क्या एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वैल्यूएशन करा रखी है, लोन है 3 बंदों का, तो PNB की वैल्यूएशन कैसे मान लोगे? CIRP में तो देखो वैल्यूएशन करवानी ही पड़ती है आपको। ओके सर। CIRP में आप पुरानी वैल्यूएशन नहीं मान सकते, और खास तौर से अगर किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वैल्यूएशन करा रखी तो वो तो नहीं मान पाओगे ना आप। हाँ जी। तो ऑप्शन नो होना चाहिए। ऑप्शन नो होगा, आंसर इसका होगा नो। नेक्स्ट देखिए, When Mr. Dhaya visited the various premises owned by Zameen Educom Limited, he found that Zishan and company, a partnership firm, was also operating from the same premises. What action can Mr. Dhaya take? Options hai: A, calling police authorities and getting the premises vacated. Option B, let them operate from the same premises. Option C, ask them to make alternative arrangements. Option D, ask for documents from Zishan and company to prove their rightful occupation. सर डी। हाँ मेरे हिसाब से भी डी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें होता क्या है, अगर मान लो इस सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं, मान लो ये जगह होती जीशान एंड कंपनी की, ठीक है, और कंपनी चल रही होती यहाँ ये जी। जमीन एडुकॉम, तो क्या होता? सिचुएशन रिवर्स कर देते हैं। यहां पर तो क्या है कि जमीन एडुकॉम तो ओनर है और ये टेनेंट है, जीशान एंड कंपनी, है ना। अगर मान लीजिए हम सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं, जीशान जो पार्टनरशिप फर्म है वो ओनर है और ये टेनेंट है, तो जीशान एंड कंपनी क्या स्टैंड ले सकती है? क्या वो कह सकती है खाली करो? द आंसर इज नो। तो 41 डी पीरियड में कहता है, तो 41 डी बोलता है कि भाई अगर आप CIRP में खाली नहीं करा सकते, है ना। और इस सिचुएशन में ये होगा कि भाई उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। कई बार होता है ना, एक कंपनी है वहां पर 4 फैक्ट्री और चल रही होती है, 4 पार्टनरशिप फर्म भी और चल रही होती है, तो उनसे बोलेगा कि भाई कोई रेंट का एग्रीमेंट है या क्या लीज है आपके पास, है क्या चीज, है ना। तो अपना राइटफुल ऑक्यूपेशन तो प्रूव करो ना, और अगर नहीं देते किराया, अगर यहाँ से चलाना है तो किराया दो, कुछ तो करो, है ना। फ्री फंड में ही तुम तो कर रहे हो। यस, नेक्स्ट देखिए। In the first COC meeting constituted by Mr. Dhaya, members of the COC passed a resolution for removal of Mr. Dhaya and recommended Mr. Lohia to be the RP. What are the remedies available to Mr. Dhaya? Option number 1, he has to accept the decision of COC but can retain lien over documents till his dues are cleared. Option B,
he can approach the adjudicating authority for his unjustified removal. Option C, he has to accept the decision of COC and hand over the documents to incoming RP. हेलो, Option D, any of the above. हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। सी। जी मैं सी बोल रहा हूँ। सी, हाँ जी, सी। सी है। हाँ, क्या करोगे इसमें? सी। इसमें ऑप्शन सी। हाँ, तो ही हैज टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द सीओसी एंड हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू इनकमिंग आरपी। आरपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Lohia, after taking charge and issuing Form G, is preparing information memorandum. While preparing information memorandum, if there are any unliquidated amounts payable, what treatment should be done about such liabilities? Option A, best estimate of such liabilities should be made. Option B, only crystallized liabilities are to be considered, ignoring unliquidated liabilities. Option C, he should seek opinion of COC. Option D, he should seek guidance from adjudicating authority. हाँ जी, क्या होगा? सर, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ए। हाँ, बिल्कुल हाँ। सही है, यही होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है क्लेम्स के बारे में। भाई फॉरेन करेंसी में क्लेम है तो क्या होगा, अगर अनलिक्विडेटेड अमाउंट है तो क्या होगा, ये सारी बातें CIRP रेगुलेशंस में लिखी हुई हैं। वो कहता है अगर कोई भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, अनलिक्विडेटेड अमाउंट्स का मतलब ये है कि लायबिलिटी तो है लेकिन अमाउंट पता नहीं है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की हुई है, अब सबको नजर आ रहा है कंस्ट्रक्शन तो हुई है, बिलिंग हुई नहीं है। जब बिलिंग नहीं हुई तो वो अनलिक्विडेटेड अमाउंट हो गया, लाइबिलिटी बुक्स में स्टैंड नहीं कर रही। वो कह रहा है मैंने खर्चा किया है, सामने नजर भी आ रहा है, तो वो क्या करेगा, बेस्ट एस्टिमेट करेगा उसको। नेक्स्ट देखिए। Mr. Lohia, in response to RFRP, got 3 resolution plans matching the criterion fixed by COC. अब देखो उसको 3 रेजोल्यूशन प्लान मिल गए, ठीक है, तीनों क्राइटेरिया मैच करते हैं, तो उसका इवेल्युएशन करेगा कैसे वो? Option है, he will put all plans before Yes. COC. Yes, sir. Second A. option is he will evaluate the plans in accordance with the evaluation matrix as finalized by COC. Option C, he will call the resolution applicants for discussion. Option D, all of the above. Sir, A. हिसाब से B होना चाहिए। ए। तो ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए बी होगा। आप एक तो पढ़िए सेक्शन 25(2)(1), एक पढ़िए सेक्शन 30 सब सेक्शन 3, और फिर रेगुलेशन 39 सब रेगुलेशन 2। अगर इनकी कंबाइंड रीडिंग आप लेते हैं तो पहले सेक्शन 25(2) पढ़िए 1 जरा एक बारी। 25(2)(1) में क्या बोलता है? 25(2)(1) में यही बोलता है मेरे हिसाब से कि वो सीओसी क्राइटेरिया फिक्स करेगी इसका। अब सीओसी ने तो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, अब ये थोड़ी सारे ग्रंथ लेके सीओसी के पास पहुंच जाएगा, कुछ काम वो भी तो करेगा। पहले वो देखेगा कि भाई सारे प्लान्स क्राइटेरिया से मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये काम तो सीओसी का नहीं है ना, पहले तो इसको ही देखना है। ये देख करके सारे प्लान्स पुट जरूर करेगा सीओसी के सामने, बता देगा भाई देखो ये क्राइटेरिया मीट करते, ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते। एक बार 25(2)(1) पढ़िए जरा, क्या कहता है, I1 है या आई है जो भी है ये। 25(2) हाँ जी, सेक्शन 25(2) आई, सेक्शन 25(2)(1) होगा मेरे ख्याल, 1 है या आई है जो भी है। Section 25 talks about duties of resolution professional. नहीं, आप बेयर कोड से पढ़िएगा, कहीं और से नहीं। सेक्शन 25(2) आई में है या सर, 1 है जो भी है। 25 आई में है। हाँ पढ़िए पढ़िए, क्या बोलता, पढ़िए।
Present all resolution plan at the meeting of the committee of creditors. हम्म क्या क्या पढ़ा आपने? Present all resolution plan at the meeting of the COC. हाँ, तो सारे और सेक्शन 30 सब सेक्शन 3 पढ़िए एक बार जरा। The RP shall present to the COC for its approval such resolution plans which confirm the conditions referred to in subsection 2. हम्म है ना। और 2 में वो सारी बातें दे रखी है, लिक्विडेशन वैल्यू। और रेगुलेशन 39 टू पढ़ लीजिए एक बार जरा। रेगुलेशन 39 सब रेगुलेशन 2। The RP shall submit to the committee all resolution plans along with the details of non-compliant plans and following transactions, if any, observed, found or determined by him. सब पुफे transactions का है सारा. Preferential transactions under section 43, undervalued under section 45, extortionate transactions under 50 बेसिकली वही है कि सारे प्लान्स उनके सामने रख देगा, है ना, along with details of PUFE transactions। तो ये थी केस स्टडी। एक बार एक और केस स्टडी देख लेते हैं, या थोड़ा सा जो चेंजेस हैं, चेंजेस को भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं, जो चेंजेस आई। ये मैं केस स्टडी आपके साथ शेयर कर दूंगा विद आंसर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये नजर आ रहा होगा आपको, है ना। इसमें क्या है, इसमें हमने कंपाइल किया सारे जो भी हमारे चेंजेस आए। CIRP रेगुलेशंस में क्या चेंज आया? CIRP रेगुलेशंस में डिटेल्स ऑफ डेट, डिफॉल्ट एंड लिमिटेशन, ये चेंज आया। क्या चेंज है? रेगुलेशन 2D। रेगुलेशन 2D क्या बोलता है? While filing an application under section 7 or 9, the financial creditor or the operational creditor, as the case may be, shall also submit along with evidence chronology of the debt and default, including the date when the debt became due, date of default, date of part payment if any, date of last acknowledgement of debt and the limitation applicable। ठीक है, ये सब ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी एप्लीकेशन में, तो इन्होंने क्या किया, रेगुलेशन में ही डाल दिया, रेगुलेशन 2D बना दिया कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे चाहे सेक्शन 7 या 9 का, तो ये बातें पहले ही बता दो। ठीक है, असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन वाला हमने पॉइंट कर ही लिया, रेगुलेशन 3A के अंदर आता है ये। ठीक है जी। बैंक अकाउंट के बारे में क्या कहना है आपका? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो उसके बैंक अकाउंट का क्या करेंगे? सर हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग रखा जाएगा। हाँ, तो ये कहता है कि वेयर द कॉर्पोरेट डिड हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, द IRP और द RP एज द केस में बी शैल ऑपरेट ए सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है। हैंडिंग ओवर द पोजीशन, हैंडिंग ओवर द पोजीशन हमने पहले डिस्कस कर लिया। अगर उसने पूरी पेमेंट कर दी है तो उसको हैंड ओवर पोजीशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको COC से परमिशन लेना है विद नॉट देन 66%। सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम में भी चेंज आया। पहले पोजीशन क्या थी? सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम में ये था कि भाई या तो 14 डेज के अंदर आप क्लेम सबमिट करो या फिर 90 डेज में, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब उन्होंने इसमें चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? सर अब ये है कि रेजोल्यूशन प्लान के लिए जो मीटिंग हो रही है अप्रूवल के लिए उसके 7 डेज पहले तक सबमिट कर हाँ, सकते हैं। उसके 7 डेज पहले तक भी कोई क्लेम आ जाए तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब वो COC के ऊपर छोड़ दिया, उन्होंने कह दिया 2 टाइप के आप क्लेम बना दो। कौन से? एक तो एक्सेप्टेबल, दूसरे नॉन एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल, है ना। जो एक्सेप्टेबल है उसमें कंडोनेशन की ड्यूटी भी RP की लगा दी कि RP ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाएगा कि ये लेट आए। और जो आपने अनएक्सेप्टेबल माने वो तुम्हें तो फिर अपने आप ही क्लेमेंट जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास।
तो ये चेंज आया इसमें, ठीक है। एआर में क्या चेंज आया, एआर से रिलेटेड प्रोविजंस में? आप पूजा जी, एआर से रिलेटेड क्या चेंज आया? फैसिलिटेटर। नहीं, फैसिलिटेटर के अलावा एआर में क्या चेंज? फैसिलिटेटर तो बाद में है, एआर में क्या चेंज? अब एआर की फीस ना उन्होंने दो तरह से कर दी। कैसे? एक तो ये कहा कि भाई हर मीटिंग के लिए एआर दो मीटिंग अपनी कर सकता है, उसकी फीस अलग है, और जो एआर जो सीओसी की मीटिंग अटेंड करेगा उसकी फीस अलग है, ठीक। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एआर दो मीटिंग से ज्यादा कर लेता है तो क्या होगा? सर वो डिपेंड करे, अगर सीओसी रेटिफाई कर देती है तो उसको हाँ, मिल जाएगी, और वो प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये चेंज आया, ठीक है जी। दोनों तरह से उन्होंने फीस इसमें रखी है। एक फीस रखी है जो एआर की फीस है, और दूसरी जो ये फॉर कन्वीनिंग दी मीटिंग ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। अब रह गई बात फैसिलिटेटर की। ये फैसिलिटेटर की कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार समझाइए जरा। सर अगर जहाँ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स 1000 से ज्यादा हो, तो हाँ, उस केस में फैसिलिटेटर अगर अपॉइंट एग्जैक्टली करेंगे। 1000 हो गए तो क्या होगा? 1000। ये लिखा हुआ है, वेयर द नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास एक्सीड्स 1000। 1000, यस अगर सर। 1000 होगा तो भी नहीं होगा। एक्सीड का मतलब तो नेचुरली 1001 होगी तभी एक्सीड करेगा। जी, उस केस में और सर क्या मैक्सिमम ये जो 5। फैसिलिटेट, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फैसिलिटेटर है, क्या इसको भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना जरूरी है या कोई भी बन सकता है? सर जरूरी है। जरूरी है, राइट, करेक्ट। और एक अगर एआर है तो एक एआर के बदले में कितने फैसिलिटेटर बन सकते हैं एक सर एआर के नीचे? हाँ, 5 ठीक है। मैक्सिमम। और उनकी फीस का भी कुछ डिसीजन है क्या, फीस कितनी जी होगी? जी सर, 20% होगी सर उसकी एआर की हाँ, फीस। बिल्कुल, जो एआर की फीस है उसका 20%। एक बात और बता दीजिए, ये जो फैसिलिटेटर है इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, सीओसी है, आरपी है, कौन है? और इनको रिप्लेस कौन कर सकता है? दोनों बातें। पीओसी हुआ। सीओसी, राइट। तो सीओसी है, वो ये कहता है द कमिटी में रिप्लेस, 16C का लास्ट वाला पॉइंट है 16C2, द कमिटी में रिप्लेस द फैसिलिटेटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सब क्लास, ठीक है। तो अगर मेजोरिटी रिकमेंड करेंगे तो उसको रिप्लेस कर सकते। देखो, एक बात और है, यहाँ 66% नहीं लिखा, तो वर्ड अगर मेजोरिटी लिखा है तो सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो हर एक सब क्लास में और कितने लोग रिकमेंड कर सकते हैं फैसिलिटेटर का नाम? 10%। वो ये कहता है कि 100। वेयर द नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास एक्सीड्स 1000, द कमिटी में डायरेक्ट द आईआरपी और आरपी एज द केस में बी टू अपॉइंट एन आईपी अदर देन आईआरपी, आरपी एंड एआर और एनी अदर पर्सन एज फैसिलिटेटर फॉर ए सब क्लास विद इन द क्रेडिटर्स इन ए क्लास सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर शैल बी कंसिडर्ड ओनली इफ आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी, तो पहली मीटिंग हो जाएगी कमेटी की, ठीक है। ए सब क्लास कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 100 क्रेडिटर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास, ठीक है जी। पहला, एक तो ये है। और रिक्वेस्ट फॉर द इंक्लूजन ऑफ एन, एक मिनट आप रुको दीजिए। हाँ जी, तो कब होगा ये? एट
at least 100 creditors out of the total number of creditors in a class. Request for the inclusion of an agenda for such appointment along with the name of the proposed facilitator. ठीक है, टोटल 5 से ज्यादा नहीं एक्सीड होंगे और फीस होगी 20%. रिप्लेसमेंट होगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सब क्लास. ठीक है, चलिए ये भी हो गया. क्योंकि ये चेंज है तो सवाल पूछ सकता है. अच्छा, 2 मीटिंग्स के बीच में कितना गैप रहेगा? 30 ये डेज का आपका, होता है, लेकिन सर वो बढ़ाया जा सकता है, क्वार्टर तक कर सकते हैं. हाँ, रेगुलेशन नंबर 18(1) है. रेगुलेशन 18(1) में क्या चेंज आया? ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कन्वीन ए मीटिंग ऑफ द कमिटी बिफोर लैप्स ऑफ 30 डेज फ्रॉम द लास्ट मीटिंग. ठीक है, तो दोनों मीटिंग में जो गैप है वो 30 डेज से ज्यादा नहीं. वोटिंग बाय कमेटी. वोटिंग बाय कमेटी में क्या चेंज आया? वोटिंग बाय कमेटी में देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे आपको तो पता ही है, फाइनेंशियल क्रेडिटर मेनली आते हैं सीओसी में. और फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? बैंकर होते हैं. वो कहते हैं देखो भाई, अभी तो हम वोट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे को तो हेड ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ेगा या रीजनल ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना. तो वोटिंग विंडो ओपन रखो. वोटिंग विंडो महीना महीना ओपन रहती थी. अब इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि भाई वोटिंग विंडो कितने दिन तक ओपन रहेगी, और अगर 66% मेजोरिटी चाहिए किसी डिसीजन के लिए, वो मिल गई है, तो क्या होगा? ये सारी बातें मीटिंग वोटिंग बाय द कमेटी में चेंज हुई है. ठीक है, तो पहला तो ये बताइए कि एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी बार एक्सटेंशन मिलेगा और कितने पीरियड का एक्सटेंशन मिलेगा वोटिंग विंडो ओपन 24 करने घंटे के का बाद? एक्सटेंशन मिलेगा. है, 24 घंटे का. हाँ, वो ये कहता है कि seek a vote of the members who did not vote at the meeting on the matters listed for voting by electronic voting system in accordance with Regulation 26, where the voting shall be kept open from the circulation of the minutes for such time as decided by the committee, which shall not be less than 24 hours and shall not exceed 7 days. मतलब ये नहीं कि महीने महीने आप ओपन रखो वोटिंग विंडो, मैक्सिमम 7 days, मिनिमम 24 hours. Provided that on a request for extension made by a creator, the voting window shall be extended in increments of 24 hours period. ठीक है, उसके बाद में एक्सटेंशन चाहिए तो 24-24 घंटे की एक्सटेंशन मिलेगी एक बार. ठीक है, provided further that the resolution professional shall not extend the voting window where the matter listed for voting have already received the requisite majority. भाई रेजोल्यूशन होते हैं, मान लो कोई रेजोल्यूशन ऐसा है जिसमें 66% मेजोरिटी चाहिए, 66 ऑलरेडी मिल गई, अब वो कह रहा है जी फिर भी वोटिंग विंडो एक्सटेंड कर दो, तो क्या होगा? उस केस में ये कहता है कि भाई वन एक्सटेंशन हैज बीन गिवन आफ्टर द रिसीट ऑफ रिक्विजिट मेजोरिटी वोट्स. ठीक है, मतलब ये है कि एक रेजोल्यूशन ऐसा है जिसमें 66% पर डिसीजन होना है, 66% मिल चुके हैं, वो कह रहा है कि वोटिंग एक्सटेंड कर दो. एक बार एक्सटेंशन हो भी चुकी तो दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डेट ड्यू टू क्रेडिटर्स. इसमें क्या चेंज आया? रेगुलेशन 28. तो रेगुलेशन 28 ये कहता है कि अगर मान लीजिए क्रेडिटर कोई इन दी इवेंट ए क्रेडिटर असाइंस और ट्रांसफर द डेट ड्यू टू सच क्रेडिटर टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, बोथ पार्टीज शैल विद इन 7 days of such assignment or transfer provide the IRP or RP at the case may be, the terms of such assignment or transfer and the identity of the assignee or transferee. वही कह रहा है कि दोनों लोग जो हैं वो डिटेल्स ऑफ सच असाइनमेंट देंगे. ठीक है, आरपी आईआरपी को या आरपी को. पहले ये ड्यूटी किस पर थी? जो असाइन कर रहा है अपना डेट, और उसको देना होता था डिटेल आइडेंटिटी ऑफ द असाइनी और ट्रांसफरी. अब इन्होंने दोनों पार्टीज के ऊपर ये ड्यूटी लगा दी. ठीक है, कितने दिन के अंदर करना है? विद इन 7 days ऑफ सच असाइनमेंट और ट्रांसफर. ये ऑडिट की बात हो रही है, ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. तो पहले तो ये बताइए ये ऑडिट कौन सा ऑडिट है?
स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कोई दूसरा ऑडिट है, क्या है ये? रेगुलेशन 30B की बात कर रहा हूं। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, ये अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट है। ये बेसिकली क्या है, ये फोरेंसिक ऑडिट हो सकता है, ट्रांजैक्शन ऑडिट हो सकता है, ये उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर मान लो फोरेंसिक ऑडिट या ट्रांजैक्शन ऑडिट करना है, तो जो ऑडिटर होगा क्या वो आईपी होना जरूरी है, या नहीं कोई भी सर। कर सकता है? सर आई नहीं सर, थिंक सीए भी हो सकता मोस्टली है। सीए को दे देते हैं सर। सीए हाँ हो। जी। सीए। नहीं, सीए की बात नहीं यहाँ, अब ये जरूरी कर आईपी दिया। होना तो जरूरी नहीं है सर अब ट्रांजैक्शन हो गया में। जरूरी, रेगुलेशन 30B में लिख दिया साफ। ओके। रेगुलेशन 30B क्या कहता है? पहली बात तो एनी मेंबर ऑफ द कमिटी में प्रपोज एन ऑडिट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा along with the objective scope, estimate of the cost, time frame and names of the proposed auditors। ठीक है, तो कोई भी मेंबर ऑफ कमिटी नाम प्रपोज कर सकता है। ए प्रपोजल शैल बी कंसिडर्ड एज पर सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशन 18 एंड एन ऑडिट शैल बी कंडक्टेड इफ सच प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी। ठीक है, the audit shall be conducted by an insolvency professional having qualifications required for such audit। तो इसका ऑडिट किसने करना है? आईपी ने ही ऑडिट करना है। ठीक है, ये पहले नहीं था, अब आया है ये। The auditor shall prepare a report detailing his findings and the same shall be presented before the committee along with the comments of the IRP or RP as the case may be। ठीक है, and expenses of such audit shall be treated as insolvency resolution process cost। ठीक है, ये प्रोविजन में चेंज आया। चलिए 30C। 30C क्या बोल रहा है? रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड परमिशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट राइट्स में ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि क्या होता है, एक बंदे के पास रियल एस्टेट होती है, लैंड होती है, दूसरा होता है डेवलपर। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो आरपी को ये रिपोर्ट देनी है। ठीक है, where the CD has any real estate project, the resolution professional shall prepare a report detailing the status of development rights and permissions required for development of such project। ठीक है, submit the report to the committee for its comments and submit to the adjudicating authority the report referred to in clause A along with the comments of the committee referred to in clause B on or before the 60th day from the insolvency commencement date। ठीक है, तो इसको ये रिपोर्ट देनी है ऑन दी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में क्या आ गया? जो फीस पेएबल टू फैसिलिटेटर, क्योंकि फैसिलिटेटर का नया कॉन्सेप्ट आया, तो फैसिलिटेटर की फीस भी जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में कवर हो गई। ठीक है, एक चीज और आई। एक क्या कहता है कि मान लीजिए कोई कंडीशंस लगा रखी हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के ऊपर। अब उसमें मान लीजिए जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, जो होम बायर है, वही रेजोल्यूशन प्लान देना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी वाले आपस में मिलके ना, जो रेजिडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हम ही डेवलप कर लेंगे जिस सोसाइटी, वो अपना ही रेजोल्यूशन प्लान ले आते हैं। तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है क्या कंडीशंस में, या जो आम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए कंडीशंस है वही उनके लिए एप्लीकेबल रहेंगी? क्या कहना है आपको इस बारे में? मेरा पॉइंट आप समझ ही गए। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहा है, वो CIRP में है कंपनी, कुछ होम बायर्स ने एक अपनी एसोसिएशन बना ली और वो कहते हैं जी हम ही इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे, हम ही PRA बन जाएंगे, हम प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाएंगे। तो क्या ऐसा करना अलाउड है यस या नो? और अगर करना अलाउ। अलाउड है तो क्या उनको कुछ कंसेशन मिलेगी, जैसे डिपॉजिट वगैरह में या और चीजों में, या ऐसा कुछ? यस सर। सर वो जो रेगुलेटरी फीस 0.25% उनको देनी होती है। रेगुलेटरी फीस का इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो होम बायर की बात हो रही है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की। वो तो IRP देता है, इसके क्या मतलब पॉइंट कोई नहीं मतलब? नहीं सर, उस केस में जिसमें कि रेजोल्यूशन प्लान की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो लिक्विडेशन वैल्यू से ज्यादा अगर आती है तो उसमें 0.25% देना होता है। हाँ उसमें हाँ। उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। हम्म। क्या रिफंडेबल डिपॉजिट वगैरह में भी कोई रिलैक्सेशन है?
पढ़ लेते हैं इसके प्रोविजंस, है जी। क्या कहता है ये? और 31A। इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या है? प्रोवाइडेड दैट वेयर द सीडी हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, द कमिटी फॉर एन एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ अलॉटीज इन सच रियल एस्टेट प्रोजेक्ट representing not less than 10% or 100 creditors of the total number of creditors in a class, whichever is lower, may relax the following, ठीक है। तो कमेटी किसके लिए रिलैक्स करेगी कंडीशन? कोई एसोसिएशन है या ग्रुप ऑफ अलॉटीज है, और कितने होने चाहिए मिनिमम? नॉट लेस देन 10% और 100 क्रेडिटर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास। तो उनके लिए सीओसी कुछ कंडीशंस को रिलैक्स कर सकती है। क्या क्या कंडीशन है? वो कंडीशन यही है, एक तो डिपॉजिट की कंडीशन है, और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल में भी है, ठीक है। अगर कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वगैरह देना है तो उसमें भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं। क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट where the corporate debtor has a real estate project, the committee may relax the requirement to provide for performance security for an association or group of authorities in such real estate project representing not less than 10% or 100 creditors of the total number of creditors in a class, whichever is lower. Mandatory contracts. मैंडेटरी कंटेंट्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान में क्या है? द कमिटी शैल कंसिडर सेटिंग अप ए मॉनिटरिंग कमिटी फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। द मॉनिटरिंग कमिटी में कंसिस्ट ऑफ द आरपी और एनी अदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कमिटी and representatives of resolution applicants as its members. Provided that where the RP is proposed to be part of the monitoring committee, the monthly fees payable to him shall not exceed the monthly fees received by him during the CIRP process. Monitoring committee shall submit quarterly report to the adjudicating authority regarding the status of implementation of resolution plans. तो ठीक है, आज की कथा यही समाप्त करते हैं, है ना? फिर करेंगे, या मैं आप एक बार वो अपनी वाली केस स्टडी डिस्कस कर लो, है पूजा जी, अगर टाइम है तो। हाँ जी सर। हाँ, एक बार शेयर करो आप शेयर कर पाएंगे ना? जी सर, मेरे एक्चुअली ना ऑफिस में बनाई थी लैपटॉप कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, मैं कर देता हूँ। देखता हूँ मैंने सेव कहाँ की है वो। किस नाम से थी? नाम याद होगा आपको? केस स्टडी फॉर ट्रेवल साइट एंड एटलस। मेरे को लगा मैंने डाउनलोड नहीं की है, मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ उससे, व्हाट्सएप से। डिस्कस कर लेते हैं। आप तो कह रहे थे आप ग्रुप में शेयर करेंगे, करी नहीं आपने शेयर? करिए सर। तो ग्रुप में शेयर की है, तो ग्रुप से कोई भी निकाल लो, उमेश जी आप निकाल लो। देखता हूँ। मेरा क्या है, मेरा व्हाट्सएप में ना टाइम लग जाता है, तो कॉन्टेक्ट्स है बहुत ज्यादा, वो सारा वो करता रहेगा, उसको 2-3 मिनट लगा देगा। ठीक है। तो एक बार आप शेयर कर लो वाली केस स्टडी।
सर वो चैट बॉक्स में रखा है मैंने। चैट बॉक्स में रख दिया, वेरी गुड। ट्रैवल साइट के ऊपर है जी। हाँ हाँ, फिर तो मैं ही शेयर कर देता हूँ। ठीक। चलिए जी, नजर आ रही होगी आपको केस स्टडी। पढ़िए जरा एक बारी, नजर आ रही है ना? हाँ जी सर। हाँ, पढ़िए पढ़िए। अच्छा मैं पढ़ूँ, उमेश जी पढ़ेंगे आप? कोई भी पढ़ लो, उसमें क्या है, कोई बात। आप पढ़ लो मैडम। ओके सर। ये RM को आप RS समझ लो, ये मलेशियन रिंगेट्स हैं, एक ही बात है। RM आर रुपीज मान लो आप लोग। हाँ जी, सर चलिए। key facts summary. 1996 travel site entered into sale and purchase agreement with Atlas to buy property for rupees 8,16,696. हम्म। Rupees 2,16,696 paid by travel site, and the balance was financed by Development and Commercial Bank Berhad via loan facility. Travel site assigned its right in the property to DCCB, now RHB Bank, as security for the loan. ठीक है Timeline जी, and flow chart. ये तो समझ में आ गया आपको, है ना? जी। मतलब ट्रेवल साइट प्रॉपर्टी बाई करना चाहती है, एटलस सेलर है, ट्रेवल साइट बायर है। ट्रेवल साइट ने एडवांस दे दिया 2,16,000 रुपए, और बाकी जो था 6 लाख रुपए का लोन ले लिया। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी। SPN loan facility. Travel site purchases property from Atlas. हम्म Rupees 2,16,696 paid upfront. हम्म 6 lakh was financed by हम्म। DCCB Bank. Deed of assignment executed. Travel site assigns rights and properties to DCCB as security. भाई अगले ने लोन दिया, 2001. लोन दे करके वो सिक्योरिटी तो मांगे ना, तो प्रॉपर्टी उसको प्लेज कर दी। ठीक है, चलिए। In 2001, Travel Site and DCCB sue Atlas for misrepresentation, seek rescission of the SPA. हाँ 2002, High Court grants rescission, orders refund of all monies paid by Travel Site, refund to be applied to redeem the property, and judgment interest payable. Now, Atlas does not comply with the 2002 order. In 2004, Atlas is wound up by a third-party creditor. Liquidators refuse to refund purchase price or redeem the property, and liquidators treat the property as unencumbered and deal with it in liquidation. तो इसमें इशू क्या है? इशू बेसिकली ये है कि ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी एनकम्बर्ड थी बैंक के पास, लिक्विडेटर ने उसको माना अनएनकम्बर्ड, और उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी लिक्विडेशन। ठीक है जी। Loan repayment by travel site. Despite recession, travel site continues repaying RHP loan. हाँ, तो ट्रेवल साइड तो 2011. अपना पेमेंट करता रहा, लोन वाला, है ना? और लोन अमाउंट 2000. उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया। जी. ठीक है जी। अब अब क्या है, अब देखिए। dispute arises. Is travel site a secured or unsecured creditor? हम्म। Liquidators argue travel site is unsecured. हाँ Federal court holds the 2002 recession order meant that property remained with travel site and RHB until the refund was made. As refund was not paid, travel site retained proprietary interest in the refund amount. Therefore, travel site claim was not unsecured. अब बात है अगर ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो फेडरल कोर्ट ने ये माना कि भाई ये जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर है। Legal findings. Recession of SPA required. Restitution by Atlas. Refund of purchase price. Counter restitution by travel site or RHP. Return of property.
Since Atlas failed to refund, recession was not completed in full. Property should have remained with Travelsite and RHB, and liquidator's sale of the property was premature and improper. Travelsite का claim, not an ordinary unsecured claim, based on proprietary right to the refund stemming from incomplete recession and priority over unsecured creditors in Atlas liquidation. हम्म हाँ जी Key insights हैं. Effect of assignment to bank. The deed of assignment in favor of DCCB created a security interest. Travelsite continued servicing the loan and RHB had a vested interest in the property. High Court के बस order मेरे के ख्याल इसको थोड़ा सा हमें और रिफाइन करना पड़ेगा। ये मैं देखता हूँ, बनाता हूँ इसको, है ना। बट मोटी मोटी बातें आपको पता चल गई। बस आप केस लॉ एक बार देख लीजिएगा इसको, है ना। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। एक बार इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको और बढ़िया बना देंगे इसको। ये सब जो इसको ऐसे लगेगा बाकी जैसे CIRP और लिक्विडेशन वाला केस है एक्चुअली। ठीक है जी, इस तरह से इसको बना करके करते हैं। ठीक है जी, बाकी फिर अपना ट्यूसडे को देखते हैं। टॉपिक रहेगा ट्यूसडे को? हैं ट्यूसडे को क्या टॉपिक रहेगा? अभी क्या बता सकते हैं, ट्यूसडे को देखेंगे।